السلام علیکم سنی بھائیوں اور جو بھی اسے سنتا ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آڈیو میں ایک دیوبندی تھا، وہ پہلے تو اپنی پہچان چھپاتا ہے انہی منافقوں کی طرح جن میرے آقا نے جس کی پیشن گوئی فرمائی تھی کہ منافقوں میں سب سے پہلے منافقت کی پہچان وہ اپنی پہچان کو چھپائے گا، دوسرا جھوٹ بولے گا، اور تیسرا بڑے ہی بطولے باز ہوگا، وکیل ہوگا بہت بڑا۔ تو میرے سنی بھائیوں، میں نے اس کم وقت سے بات کی تو یہ کافی ٹائم تک تو قبولا نہیں یہ کون بول رہا ہے، کبھی کہتا میں اہل حدیث، کبھی کہتا کچھ، اینڈ میں آ کے اس کی پول پٹی کھلی تو یہ دیوبندی ہے، دیوبند سے بول رہا ہے۔ اور انہیں اعلیٰ حضرت سے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے نبی کا علم کا مانا ہی نہیں، عطائی زیادتی کیسا بھی، تو اعلیٰ حضرت تو جگہ جگہ فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا ان سے چھپا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا ان پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت پہ یہ تنقید جھوٹ بول رہا تھا، اور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پیشوا اہل سنت الشیخ امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ ہمارا تو عقیدہ ہے ہی کہ ہم آقا کو نوری بشر مانتے ہیں، نوری بشر، اور تو یہ کہہ رہا ہے یہ تو ہم دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم نوری بشر مانتے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو اتنا ہی بدبودار ان کا عقیدہ ہے تو یہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے، ان عقیدوں سے معافی کیوں نہیں مانگ لیتے، توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ تو نبی کو اپنے جیسا بشر بتاتے تھے، اب کہنے لگے ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ تو ان کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، اور میں آگے وہ رام دیو والی نے ویڈیو بتائی تھی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تو وہ رام دیو کی میں نے ویڈیو لاسٹ میں ڈالی ہے، اسے آپ ضرور سنیں اینڈ تک، وہ دکھے گی۔ وہ دیوبند میں کہہ رہا ہے دیوبند کے مفتیوں کے منہ پہ کہ یہاں پہ سب دیوبند ہیں اور دیو کی پوجا کرتے ہیں، یعنی بھوت کی بھکتی کرتے ہیں، بھوت کی پوجا کرتے ہیں۔ تو استغفر اللہ، کسی دیوبندی کی ضرورت نہ ہوئی۔ امام محمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں کو تو قبر پجوا کہتا ہے، اور بلکہ دیوبندی ان مفتیوں کے سامنے ان نے دیوبندیوں منہ پہ تماچا مارا، اور پھر اس کی غیرت نہ جاگی، اور کسی نے یہ بھی نہیں کہا یہ کیا کہہ رہے ہو۔ وہ ویڈیو سب موجود ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سنیے۔ ہیلو، ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محمد فرقان بول رہے جی ہیں؟ جی حضرت، ہم نے ایک آپ کی آڈیو سنی تھی یار۔ اچھا، جی جی، جیسے آپ اس میں بول رہے تھے جب سے احمد رضا آیا ہے اس نے دین کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ جی جی، تو کیسے کر دیا ہے یہ پوچھ رہے تھے۔ کیسا کر دیا؟ ہاں تو خود دیکھ لو تم کیسا کر دیا، خود ہاں، دکھائی دے رہا تمہیں۔ تو میں یہ بول رہا ہوں تمہارا مسئلہ کون سا ہے، کون سی جماعت سے تعلق رکھتے ہو؟ ہم تو کسی سے بھی رکھتے ہو، لیکن میں تو اس کو جانوں نا کہ اپنا ارے ستیہ ناش کرا ہے۔ تو بتاؤ گے کون سی جماعت سے تعلق رکھتے ہو؟ اہل سنت والجماعت۔ اس دور میں کوئی پہچان؟ اب یہ سناؤ، اہل سنت والجماعت ایک ہی تو ہوگی یا 10 ہیں؟ پہچان اس دور میں کسے سنتے ہو سر، یہ پوچھ رہا تھا۔ پہچان وہچان پوچھنے کا فائدہ نہیں ہوگا، ایک ہی جماعت ہے اہل سنت والجماعت کی۔ اچھا اچھا، میں تو پھر اتنا بتاؤں گا کہ احمد رضا نے جو ستیہ ناش کر دیا دین کا۔ ہاں تو بتاؤ کیسے کر دیا، بتاؤ کیسے کر دیا؟ ہاں دیکھ تم خود ہی دیکھ لو کہ تمہارے یہاں حج کرنے جاتے ہیں نا سعودی عرب میں، ہاں وہاں پر جو ہے نماز نہیں پڑھتی امام صاحب کے پیچھے۔ ہاں نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ تو بتا سوال کا رہے جواب ہے، سنو کیوں نہیں پڑھتے؟ ہاں سنو حضرت ہاں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں نے امامت کی تھی، ٹھیک ہے؟ بس تم یہی دلیل دیتے رہنا ارے ہمیشہ 3 دن سنو تک۔ تو اب صحیح، سنو تو صحیح، یہ چل تھوڑی ہے دوسرے کہ سن لو۔ مسلسل 3 دن کا تم اسی کو رٹ لگاتے رہو گا 3 دن کی بات کو۔ اچھا یہ تو تو کتنے سال ہو گئے، اور قیامت بالکل قریب ہے تمہارے لیے، کب تمہاری حکومت وہاں پر آئے گی؟ تو اللہ میرے 3 دن بات سننا، نہ سنو پہلے، پھر 3 بول دن لیا، کے بعد تم کب؟ چلو بول لو، بولو میں ہاں، جو تم مجھے بتا رہے ہو 3 دن کے بعد حضرت عثمان کے بعد، وہ 3 دن کی دلیل کب تک تمہاری چلتی رہے گی؟
जब तक ईमान हमारा जिंदा है, जब तक ईमान हमारा जिंदा है, जब तक ईमान हमारा जिंदा है, क्योंकि हमारे आका करीम आगा आई हमारी हुकूमत आएगी। तुम्हारी वहाँ पर हुकूमत आएगी क्या, ये बताओ पहले। क्यों नहीं आएगी? आएगी, बिल्कुल भी आएगी नहीं, ना। कभी भी नहीं। कयामत करीब है या नहीं है? कयामत करीब है, अभी हम मेहंदी ने सलाम आएंगे तो हमारी हुकूमत होगी वहाँ पे। ना नहीं, तुम्हारी कभी भी नहीं होने की, हमारी ही हुकूमत। अच्छा, इससे पहले किसी की? अच्छा, इससे पहले किसी दलील देते हुए हाँ तो तीन दिन नमाज पढ़ी, ईमान वाले तुम्हारे हाशिमी मियाँ सुनाते हैं, हर एक यही सुनाता, ये कोई दलील है? अच्छा, यही दलील। अच्छा तो दूसरी सुनो, अरे दूसरी सुन लो भाई, दूसरी सुन लो, दूसरी सुनो। हाँ, सूरह तौबा में आयत नंबर 10 पे पढ़ो कि मेरे आका करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मस्जिद को तोड़वा दिया था जो मुनाफिकों की थी, और वहाँ पे भी मुनाफिक नमाज पढ़ाते हैं, तो इसलिए हम उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। समझ गए? अच्छा। और खाना सुनो, क्या क्या खाना क्या खाते हो? खाना खाते हो हम या नहीं? तुम क्या खाते हो? गोबर? हाँ, तुम गोबर खाते हो ना? तुम खाना खाते हो या नहीं, ये बताओ मुझे। तो ये सवाल ही तुम्हारा बेकार है। खाता हर कोई खाता है। क्यों 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 नहीं है सवाल मेरा? हाँ तो बोलो बोलो, आप बोलो। अब मुझे ये बताओ, तुम जो वहाँ पर खाना खाते हो, ये बताओ कि तुम्हारे नजदीक अगर काफिर हलाल कर दे जानवर को, तो वो जायज होगा क्या? अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंब। तुम लोगों में, तुम लोगों में जायज होगा या नहीं? वो तुम लोगों में नहीं होगा या नहीं? बिल्कुल नहीं, तुम लोगों में नहीं। तो फिर तुम होटलों पे बैठ करके खाने क्यों खाते हो? उनका जो क्या नाम है, तुम्हारे बरेलवी वहाँ पर नहीं है, उनके होटलों पर बैठ कर दिखलाऊं तुम्हें? बताओ कितने बरेलवी को, तुम्हारे पढ़े लिखों को दिखलाऊं उनको होटलों पर खाना खा रहे हैं, जो तुम्हारे नजदीक जो काफिर हैं, बताओ उनका सबिया कैसे जायज होगा? तुम तो खुद हराम का खा रहे हो वहाँ। पता है कुरान के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वो चीज तुम्हारे लिए जब जायज है। अरे कुरान भाई, ओ हेलो अहले सुन्नत वल जमात सुन्नी हमें, अरे बात तो सुन, बस मेरी मुंह पर रटा हुआ है, रट लिया है। होटलों पर जा करके खाने भी खाते हैं, वो तो कुरान तुम्हारे नजदीक जायज भी नहीं है उनका ज़बिया, उनके बावजूद वहाँ पर बैठ करके तुम अरे भाई कुरान सुनेगा भाई, शर्म नहीं आती? ओ फुरकान कुरान सुनेगा, कुरान सुनेगा, नाम तो बड़ा अच्छा है। पहले कुरान से ही अकीदा मेरा है, कुरान से गलत है। चल सही नहीं है। की बात ही वहाँ मलूस वाले, पहले पाक खाओ उसके बाद नहीं कमाल करो। खाने को तो जैसा खून मिलेगा ऐसी काम करोगे। अच्छा मैं बता तो रहा हूँ, मेरा कुरान करीम की सूरह तौबा में अल्लाह ताला फरमाता है, इन मुनाफिकों को सलाम न करो, तो तुम्हारे पीछे नमाज क्या पढ़ेंगे? कुत्तों सलाम नहीं करते हम तुम्हें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्या, और बहुत बढ़िया, कितनी अच्छी तो बात बता रहा। और ये सुन ले, तुम वहाँ पर होटलों पर जाकर के खाना क्यों खाते हो? जब तुम्हारे मुसलमान ही नहीं है, तुम उनके होटल पर खाना क्यों खाते हो? यही तो सवाल है मेरा। हाँ तो बोलूं, क्यों खाते हो? हाँ तो बोलूं। हाँ बोल के चलो, बीच में मत बोलना, मैं इसीलिए बोला। अल्लाह ताला कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, वो चीज तुम्हारे लिए जब जायज है तुम्हारे पास कोई रहा न हो, बस जायज हो गया। वो हराम चीज जब जायज है तुम्हारे लिए जब तुम्हारे पास कोई रहा ना हो, रास्ता ही ना हो, मत बनाओ, बस हो गया। कुरान है, तुम खाली नाम लेते, कुरान पढ़ते पढ़ते तो नहीं तुम कहीं से भी कुछ अपना बना। ये कुरान है, ये कोई तुम लोग कुरान से तुम्हारा दूर दूर का वास्ता नहीं है। मेरी बात सुनो, कुरान से अच्छा अहले हदीस हो, तुम अहले हदीस हो, सही। तुम ये बताओ क्यों खाते हो? चलो मैं सूरह फातिहा खोलो, सूरह फातिहा खोलो। कौन? तुम सूरह फातिहा खोलो। क्यों पढ़ूं मैं सूरह फातिहा? सूरह फातिहा नहीं, सूरह फातिहा। आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ महबूब, हमने आपको खुल्ला फतेह दी। अच्छा। और हमने आपके अगले और पिछले गुनाहों को माफ कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंब वतूबु इलैह, तुम्हारे गैर मुक़ल्लिदों का तर्जुमा है। नबी को गुनहगार लेकर गया है, इसीलिए हम इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते, इसलिए नहीं पढ़ते इनके पीछे नमाज। सूरह मोमिन आयत नंबर 55 में, आयत नंबर 50 या 55 है, मैं पढ़ूंगा बता दूंगा। उसके अंदर कहते हैं कि तुम्हारी अगली पिछली हर कोताही को माफ कर देंगे। बताओ, मुस्तफा को गुनहगार लेकर गया, इसलिए नहीं पढ़ते इनके पीछे हम नमाज। ये लोग कहते हैं कि जूना गली कहता है कि हम मोहम्मद की
अगर बिना वही बोले कुछ भी तो हम वो बात नहीं मानते। और नहीं, बिना हम वही क्या कह रहे हैं, तुम इधर उधर की बात मत करो, तुम अरे ये तो बताओ इधर उनको- कुरान पे है, उनसे- कुरान पे है। उनसे पूछो, उनके सामने क्या होना जा करके उनके सामने बात करो। तो तू कैसे कह रहा है भाई, तू कैसे कह रहा है कि अहमद रजा ने तख्ता पलट दिया है? सुनो, अच्छा मेरी बात सुनो, अहमद रजा ने कैसे तख्ता पलटा, हम बताना कैसे तख्ता पलटा है। जब हम मैं बता तो रहा जब आपस में इत्तेफाक नहीं है। अच्छा बात तो सुनो, वो अच्छा, तुम और अहमद शुरू ही रजा मसाइल। बताओ, ये बताओ, तो अहमद रजा की तो बात तो तुम खुद पूरी नहीं मारते। तुम तो सारे बरेलवी कहते हो कि हम इल्म को मानते हैं, अहमद रजा कहते हैं नहीं मानते। ये वो बात हुई, हमें तो बात समझ में नहीं आती। अच्छा, यार नहीं भी जो वो नहीं मानते, तुम्हारी क्या है ये? अच्छा कहाँ कहते हैं अहमद रजा ने कब नहीं माना, ये बताइयो कब नहीं माना? क्या अहमद रजा ने कब नहीं माना? क्या नहीं माना? वो तो ये अहमद रजा तो ये कहते हैं। हाँ इल्म मानते हैं अहमद रजा? हाँ, मानते साबित कर दिया नहीं मानते हैं, मैं साबित कर दिया तो बोलिए हाँ? बताइए। मैं साबित कर दिया तो अरे तो बताओ ना। अरे मैं बताऊंगा जब तुम नहीं कहूंगा। अगर मैं साबित कर दिया तो तुम अहमद रजा को छोड़ दोगे या नहीं, ये बताओ पहले। हाँ चलो तुम पढ़ो, आगे बढ़ो। हाँ, अरे तुम साबित तो करो। अच्छा, इससे पहले मैं तुम्हें बताऊं, तुम मुझे पहले ये बताओगे कि अरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो इल्म गैब मानते हो, अताई मानते हो या जाती? ये बताओ पहले। अताई बस। तो हाँ। तुम अब जो ये समझ लो फंस गए पूरे। हाँ फंसा दिया हमने, पता तुम यही करो, फंसा हाँ, जाए तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हाँ इल्म गैब मानते हो क्या? अताई। अताई। अच्छा, बहुत अच्छा। मा कान व मा यकून। हाँ अच्छा, इसका मानना फर्ज है या वाजिब या सुन्नत? बस यही तो बात है। तो फर्ज बात कुरान के अंदर कुरान के अंदर आया तो हम मानते हैं, बस बात खत्म। ना, तुम ये बताओगे फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, क्या है? अहमद रजा ने क्या लिखा है? यार नहीं, मुझे नहीं पता अल्लाह हज़रत ने क्या लिखा है और मौलाना नईम खान ने क्या लिखा है। कुरान के अंदर है, बस मैं मानता हूँ। अब आगे तुम बताओ। कुरान के अंदर इल्म गैब है और क्या इल्म गैब है? सूरज खोलो, सूरज एक आयत पेश कर सकते हो मेरे सामने? हाँ लो, अभी लो, करो। हाँ सूरज खोलो, करो। सूरज निसा के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि ला आलम तकुन तला आलम के ऐ महबूब जो तुम हाँ सब कुछ हो गया, सब कुछ। अच्छा मालम तकुन तअलम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। इससे तुम इल्म गैब साबित कर रहे हो। मैं इल्म के ऊपर बात कर रहा हूँ या इल्म गैब पर बात कर रहा हूँ? अच्छा क्या नहीं जानते थे मेरा उसमें इल्म गैब भी है। सुनो, मैं इल्म गैब पर बात कर रहा हूँ या खाली इल्म पर? ना तो मेरा झगड़ा तुम्हारे ऊपर इल्म के बारे में। नबी को इल्म था, इस पर मुझे कोई एतराज नहीं। नबी को गैब पर मुत्तला किया गया, इस पर कोई एतराज नहीं। मुझे ऐसी दलील पेश करोगे जिसके अंदर इल्म गैब ये दोनों एक साथ हों, ऐसी दलील पेश करोगे? चलो लो जी लो आलिमुल गैबी, ये वाली सूरज जिन है, आयत नंबर 27। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर सुनो तो आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबी अहद। अब मैं तुम्हें नीचे का तर्जुमा बता रहा हूँ। गैब का जानने वाला अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता, नहीं देता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के। तब तुम क्यों गधापंथी दिखा रहे हो? अल्लाह तो देता है अपने पसंदीदा रसूलों को, फिर दोबारा पढ़ना कुरान पाक क्या है, दोबारा पढ़ना। लो दोबारा पढ़ो आयत। हाँ लो आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहद इल्ला आहद नहीं है, आहदा है, आहदा। देख लो, तन्वीन आई हुई है, तन्वीन आने के बाद दो ज़बर की वो अलिफ बना देती है, आहदा कहा जाएगा। चलो अल्लाह का शुक्र है, चलो थैंक यू बताने के लिए। अहद इल्ला मन इर्तदा मिनर रसूलिन व इन्नहु यसलुका मिन यसलुकु कहाँ पर पेश? हाँ यसलुकु मिन बैन यादिही व मिन खल्फी रसादा।
गैब अच्छा, एक बात बताओ, हाँ, आप मुझे- अब तो सुनो मैं समझ सुनो, गया। अच्छा नबी से हाँ, हाँ, नफरत है फिर तुम्हें, ये तो बताओ जो कुरान में नबी की फजीलत में जितनी आयत उतरी है वो नहीं मानते, ये उल्टी उल्टी आयत जो दिमाग ठीक अपना है, भी सोच लेते हो इसे। आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं बताऊं इस पर मुझे कुछ तनकीद कर सकता हूँ? अब तुम तंकीद ही करोगे क्या, तुम्हें आता है कुछ इसके अलावा? तनकीद नहीं, तनकीद तनकीद। चलो चलो हाँ करो करो करो। मैं कहूँगा इससे इल्म गैब साबित हो रहा है या इत्तिला अल गैब साबित हो रहा? अब तुम कुछ भी करो, तुम्हारा दिमाग में भूल होगा, कुछ साबित नहीं होगा, क्योंकि कुरान कहता है सुनो, अब मेरी हाँ हाँ बोलो। तर्जुमा करे कि ना अल्लाह तबारक व तआला गैब पर मुत्तला नहीं करता, ये तुम ये गैब का इल्म नहीं देता, इस तरह की आयत पेश करोगे जिसमें इत्तिला का लफ्ज ना हो, इल्म गैब जानना, इसके तुम लफ्ज इस्तेमाल करके दिखलाओगे। अरे इत्तिला गैब तो हम भी मानते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब पर मुत्तला किया गया हम भी मानते हैं, लेकिन इल्म गैब की निस्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ही नहीं की जा सकती। तो ये मैं कहाँ लगा साबित कर दूंगा। जाती इल्म गैब की जाती दलील क्या देते हो? वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन, सब जानता हूँ जो दलीलें तुम देते हो, समझ में आ गया? मेरे पास सारी दलीलें मौजूद हैं, अहमद यार नईमी की दलील मेरे पास मौजूद है। अहमद यार नईमी ने लिखा है मकाम विलायत व नबुव्वत अल्लामा गुलाम सईदी सफ़ा नंबर 92, हुजूर के लिए इल्म कुल्ली मा कान वमा यकून मानना ना फर्ज है, ना वाजिब है, ना सुन्नत है, और तुम्हारे नजदीक तो वो काफिर है जो इल्म गैब को न माने, तो लगाओ अपने आलिम पर फतवा। तो कुरान कह रहा है फतवा क्या लगा, फतवा कुरान कह रहा है, फतवा क्या लगा? सफा खोल लो जल्दी से ये किताब, और सफा नंबर है भाई ओ भाई सुन रहा है, ज्यादा तौर पर अगर नबी का एक मेरी आंख है जो देख रही है, अगर मैं खुद देख रहा हूँ तो मैं काफिर, भाई अल्लाह मुझे दिखा रहा है तो कहाँ में रह गया, वो ज्यादा तौर पर है मेरे भाई, बस यही तो कुछ कर की अहमद रजा की जिल्द नंबर 3 है, सफा नंबर 23 है, वो कहते हैं कि इल्म की जब इजाफत गैब की तरफ हो तो जाती इल्म मुराद होता है। अच्छा जाती मुराद होता है, चलो जो यही तुम लोगों ने बात मानोगे तो जाती मानना होगा, और अगर अच्छा ये लगा बात सुनो, मेरी बात सुनो, जब मेरे आला हज़रत मुझे दीन मिल्लत पे हरम शरीफ में तुम जैसे खबीसों ने एतराज किया था कि नबी का इन्होंने अल्लाह के बराबर मानते हैं। बात सुनो मेरी, बात सुनो अरे तुम पाओगे तो भाई मैं तो एक अदना से एक लड़का हूँ, मैं कोई हाफिज नहीं कारी नहीं, मैं कुछ नहीं, अदना से लड़का हूँ, लेकिन सुन्नी सनातन। बात सुनो मेरी, मेरी बात सुन लो पहले। अगर मुझसे बात करनी है इस्लाह के तौर पर तो बात देखो साफ सुथरी करो, समझ में आ गया? नहीं बड़बड़ करने से कुछ फायदा नहीं होगा, तुम्हें इस्लाह के तौर पर बात करनी, कौन हक करे कौन उस करे, तो तुम इस तरह से मुझसे बात करना चाहते तो करो, नहीं? अच्छा चलो एक बात ठीक है, लेकिन आप अपने अपनी चलाए जाएंगे तो बात ठीक नहीं होगी, बिल्कुल मैं यकीनन कह रहा हूँ, वरना तुम कयामत के रोज खड़े होकर के आंखों से जो आंसू निकलेंगे ना, खून निकलेगा और कहोगे हाँ ये मौलवी सही बता रहा था हमें, समझ में आ गया? नहीं मौलवी बता रहा था, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ करनी है तो बात कर लो, करनी है नहीं बात करनी है इस्लाह के तौर पर नहीं, मैं करते रहा हूँ। आप मुफ्ती हो आलिम कौन हो भाई ये बता दो? मैं तस्लीम हाफिज हूँ, बताओ करो बात। तुम हाफिज हो, अभी तो कह रहे मौलवी हो। अच्छा मैंने कौन सा कह दिया मौलवी हूँ? तो ये मौलवी बता रहा था, अभी तुमने कहा था ना। अब मौलवी बता रहा था तो मौलवी को हमारे मौलवियों ने नहीं बताया क्या? चलो मैं मौलवी नहीं तो मैं किसी मौलवी से नहीं पूछूंगा कुछ। भाई मैंने दलीलें जमा कर रखी तुम्हारी लिख करके, ये वैसी थोड़ी कर रखी है, तुमसे मुकाबले की नहीं कर रखी है, मैंने तो तुम्हारे ड्राइवर को ठीक कर दिया, तुम आसन ड्राइवर है ना, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम बात इससे साबित करो इल्म गैब साबित हो रहा हो तो पढ़ो। अच्छा चलो बीबी जनीन पढ़ करके बताओ इस आयत को। तुम बताओ मैं क्यों पढ़ूं? तुम पढ़ो, तुम हाफिज पढ़ो, तुम तो अहले हदीस हो ना, पढ़ो तुम तो अहले हदीस हो ना, पढ़ो तुम पढ़ो। अब क्या अहले हदीस है? तुमने खुद ही बता दिया हम हदीस वाले, अहले हदीस का मतलब हदीस वाले, यानी कि हम हदीस को मानते हैं। अभी तुमने हमें अहले हदीस कह दिया, तुम हदीस को मानते। देखो तुम बरेलवी हो तो तुम
सही, खुद ही अब साबित कर रहे तुम अहले हदीस। अरे भाई। अहले हदीस से मतलब है हदीस वाले, यानी ये हदीस को मानते हैं, और तुम जो अच्छा। बरेलवी हैं वो खबरों को पूछते हैं, इसका मतलब ये निकला नहीं फिर? चलो आलम निकला नहीं? चलो मैं बता अरे रहा हूँ, बताओ तो चलो निकला चलो नहीं? मान ले भाई, मान ले, निकला नहीं? बात सुनिएगा नहीं, बात तो बात यही मान सुनिएगा। लोगे तो बस होगी मेरी हाँ बात चलो बात पूरी। सुन, अरे बात सुन मेरी अच्छा, अब पहले। रही बात तुम्हारे अरे इल्म गैब के बारे में, भोगता रही मत बात रहे, मेरी भी इल्म गैब के बारे- सुन ले पहले। मेरी भी सुन ले, सुन पहले ले, मेरी सुन ले। मैं बात अभी तुमने कैसे बोला कबर पुजवा, ओए मैं और कहता हूँ पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अता है, अगर मानोगे तो अहमद यार नईमी ने नहीं माना, अहमद रजा ने नहीं माना। अगर तुम कहो साबित कर तो मैं साबित कर देता हूँ, बताओ करूँ साबित? पहले तो मेरी बात, हाँ पहले चलो साबित करो, तुम पहले बोल बोलो। अगर मैं जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 23 खोल ले जल्दी से। कौन सी अल महफूज अहमद रजा लिखने वाले, जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 23, क्या लिखा है? अहमद रजा ने उसके अंदर लिखा है कि अगर इल्म की इजाफत गैब की तरफ की जाए तो वो इल्म से मुराद जाती होगा, ताई नहीं होगा। अगर आप उस इल्म को जाती मानेंगे तो गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के बराबर मानना लाजिम आएगा। अब तुम बताओ अहमद रजा की नजर में क्या हुए? अब इसी किताब में पूरा दो लफ्ज आगे पीछे के पढ़ो। अल्लामा सईद ने लिखा है कि इल्म गैब मानना ना फर्ज है, ना वाजिब है, ना सुन्नत है, और तुम कह रहे हो मानना, जो ना माने वो काफिर है। तो बताओ तुम किसके आड़ में खुद आ गए? क्या तुम मुसलमान रह गए फिर? अरे मेरी बात बोलो 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 हैं? बोलू, मैं बोलू, जो बोलना बोल बता। और इसी लफ्ज से अरे तुम तो सही आगे आगे भाग रहे भाई। जो तुमने पढ़ी है ये जो तुमने पढ़ी है अलग वाली किताब, इससे एक लाइन पहले वाली पढ़ दो, एक लाइन बाद वाली पढ़ दो, बात खत्म, उसी में समझ में आ जाएगा। मैं तो तुझे सपनों को सब बता रहा हूँ, तू खोल करके खुद रख ले अपने सामने। मेरे पास ये किताब नहीं है, पढ़ी है, मैंने सुना है। किताब नहीं है तुम्हें यही इल्म नहीं है कि अहमद रजा ने लिखा क्या, तो तुम मुनाजरे करने क्यों आते हो? तो तुम मुनाजरे पढ़ करके आओ, कैसे तुम मुझसे बात कर पाओगे? अरे तुम मुनाजरे ऐसा करो, सुन ले पहले, किसी बड़े आलिम को ले ले, किसी बड़े आलिम को ले ले लाइन पे, सुन ले, किसी बड़े आलिम को ले ले लाइन पे, होल्ड पर रख करके किसी बड़े आलिम को बुला ले। कोई बड़ा आलिम बात नहीं है भाई, अहमद रजा को बुला ला साथ में, चल तुमसे बात नहीं हो पाएगी। अच्छा चलो एक बात सुन लो, एक बात सुन लो। तुमने आयत पढ़ी मेरे सामने, वहाँ इससे इल्म गैब साबित नहीं हुआ। साबित हो गया हमारे लिए, इससे इल्म गैब साबित नहीं हुआ। हो गया। तीसरी आयत मैंने खुद पढ़ करके बता दी, तुम जो दलील दोगे वो मा हुआ अलल गैबी बिज़नीन, इससे इल्म गैब साबित नहीं होगा। अब मैं साबित करूँ मेरे सामने? मैं बोलते लेने मेरे भाई, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल लज़ीना कफ़रू सफ़ाउ अलैहिम अंज़रतुम अमलम तुनज़िरुम ला युमिनून। मेरी बात तो सुन ले, आगे बोल लेता है फिर मारा जाएगा भाई, बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। मेरे सामने जो है ना थोड़ा आहिस्ता से पढ़ो, कुरान पाक की मुझे आवाज नहीं आ पा रही, दोबारा पढ़ो। इन्नल लज़ीना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल लज़ीना कफ़रू सफ़ाउ अलैहिम अंज़रतुम अमलम तुनज़िरुम ला युमिनून खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला अस्माइहिम व अला अब्सारिहिम गिशावतुम व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है इन मुनाफिकों को चाहे तुम डराओ या न डराओ, ये कुत्ते ईमान लाने वाले नहीं, समझ गए, मानने वाले ही नहीं। तो तुमसे क्या बात करूं मैंने तीन चार दलीलें दे रहा हूं, तो तुम क्या मानोगे? तुमने नंबर कहाँ से लिया मेरा? नंबर कहाँ से लिया ये बता। यूट्यूब पे मिला। यूट्यूब से? हाँ यूट्यूब पे मिला था। तो मैंने उसमें क्या कहा था यूट्यूब में? जो नंबर मिल गया तुम्हें क्या बात कह दी थी? ऐसी मैंने तुम्हें बुरा लग गया एकदम फोन मिला दिया मेरे पास। जब से अहमद रजा दिन का सत्यानाश कर दिया, मैं वही तो है, जब से ये अहमद रजा ने सत्यानाश करते सही तो मैं साबित कर रहा हूँ। तुम्हारी किताब अपनी किताब का नाम निशान भी नहीं ले रहा मैं तो। अच्छा एक बात, नबी का मजार कब का बना हुआ है? नबी का मजार कब बना है? नबी का मजार कब बना? उधर की बातें तो कबर पुजवा बोला था तूने, तो बता कहाँ कबर पुजवा बोला था? मेरे आका की मजार शरीफ किसने बनाई थी सबसे पहले? मुझे बता, तू भाग मत अब तू भाग रहा है, बात तो यही है, तू भाग मत। अहमद रजा पर ईमान लिया हो ना, हम ये नहीं कहते कि आलिम से गलती नहीं होगी। अगर तुम हमारे किसी आलिम के बारे में कहोगे इसने ये लिखा है, अगर हम उसकी तरफ रुकी करेंगे और हमसे पूछेंगे भी गलती नहीं हुई, बात तो यही, तुम अपने ईमान ही ले आओगे। एक बात बताओ,
तुम अपने बाप को ही बाप नहीं कहते, वक्त आने पे बदल जाते हो, ये मानते ही नहीं। मुद्दा तो यही है, असल बात तो यही है। आप बता जूनागढ़ जाता हूँ मैं, नबी की बिना वही की बात नहीं मानता, तो क्या मानेगा? सुन लिया, अहमद रजा को तुमने यूं कैसे कह दिया, ईमान का सत्यानाश कर दिया, उसके ऊपर तुम मौजू को हटे हिलने के पर आ गए सऊदी अरब का। तू बताता भाई, तू बताता, मैंने तुझसे पूछा था क्या कर दिया, तूने बोला कब्र कर दिया। तू छेड़ता है बातें सारी, मैंने तुझसे पूछा था, तूने बोला कब्र पुजवा, तूने बोला कब्र पुजवा, तूने बोला कब्र पुजवा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मानते हो, नूर बशर? नूर बशर दोनों ही मानते, नहीं मानते, और ये तुम्हारे सारे आलिम भी मानते हैं या नहीं? हाँ सारे आलिम मानते, नूर बशर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जात के एतबार से नूर हैं या बशर? जात के एतबार से नूर है या बशर? जात के एतबार से बता, नूर हैं या बशर? मेरे आका करीम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे आका जात के एतबार से नूर है, वैसे बशर है, इंसान है, इंसान है, वो इंसान है। ये कुरान तो ईमान बताता है, ये ईमान कहता है, मेरी जान है ये अकीदा तुम्हारा नहीं है, ये हमारा अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा तुम्हारा नहीं है। अच्छा चलो एक आलम का शेर सुना रहा हूँ, समझ लेना ये किसका अकीदा है। आलम फरमाते अल्लाह की सरता बकदम शान है, ये इंसान ही इंसान है, वो इंसान ही है, कुरान तो ईमान बताता है, ईमान ही कहता है, मेरी जान है। अरे तू भागता फिर, अभी तो हमारा अकीदा है। इस दुनिया के अंदर आए थे, कौन से लिबास में आए थे? बशरी लिबास में, नूरी लिबास में। दुनिया के अंदर बशरी लिबास में, क्या अल्लाह इस पे कादिर नहीं मेरे आका को नूर बनाया हो, भेजो? अच्छा, मेरे आका का साया था, क्या अल्लाह ताला इस बात पर कादिर नहीं है कि इमाम काबा को मुसलमान बनाए, वो नमाज वो पढ़ाए जो मुसलमान हो, इस पर कादिर नहीं है? तुम कादिर होने की बात कर रहे हो। अल्लाह ताला ने इससे पहले अल्लाह कादिर नहीं है कि तुम्हें जो अहले सुन्नत वल जमात बना दे। अल्लाह ताला इससे पहले कादिर नहीं था कि 365 बुत कब मक्का पे काबे शरीफ में आगे रख दी गई? तीन दिन की बात की करते हो? अब देखना अब 3 दिन की हमारे मरे नानी मर जाती, अभी इससे पहले वहाँ पर बात सुने, नहीं होने का इंशाअल्लाह है, अभी होगा, फिर होगा इंशाअल्लाह, फिर होगा। मेरे आका ने फरमाया रहने वाले, ये बताओ मुझे, नहीं आते तुम मेरे साथ? मैं मुंबई में हूँ, तुम कहाँ में? मैं मुंबई से हूँ, तुम कहाँ से हो? अच्छा तुम ऐसा करो, ईद एक महीना 2 महीने नहीं, ईद के बाद में तुम्हें देवबंद में बुलाता हूँ, मैं पढ़ने जाऊंगा, वहीं तुम्हें करीब पड़ेगा, वहाँ जाना मेरे पास। अच्छा सड़क हो, बिल्कुल सड़क, अच्छा सड़क हो, देवबंदी हो, देवबंदी हो कौन? तुम? मैं कुछ भी सही, तुझे समझ आ गया ना बात पे, सुन ले, मेरे एक किताब बता रहा हूँ, सुन ले, एक किताब बता रहा हूँ, किताब का नाम है हिफ्जुल ईमान। मेरे आका करीम के लिए अशरफ अली ये थानवी लिखता है, जब से ये सड़ेले आदमी आए, मेरे आला ने इनके खिलाफ बोला है, ना के दीन के खिलाफ। इन्होंने लिखा कि नबी का इल्म गैब कुल या बाज मानना, तो कुल मानना तो कुल तो अल्लाह के पास है, बाज मानो तो ऐसा इल्म तो पागलों को भी है, जानवरों को भी, बच्चों को भी है। अब बता, मान अशरफ अली थानवी को मान, कुत्ते बात तो मैं जवाब दूँ इसका? जवाब दो, बोल दो, तो मेरा बात ही नहीं है, ये तुम मुकर जाओगे इससे, जवाब दे रहा हूँ, जरा खामोश रहना भी। हाँ बोले, हाँ बोले मुकर जाओगे। सबसे पहले इल्म गैब को जानने के लिए हमें गैब के मायने जानना जरूरी है। छोड़, मेरे आका का इल्म की गैब की तस्बीह जो बे कुत्ते, मेरी बात है, कुत्ते सूर से भी मेरी आवाज पूरा रही है। जब कुत्ते सुअर से मेरे आगे तस्वीर दी आ रही, तो तेरे कान सुन कर रहे हैं, लाहौर पढ़ना चाहिए, तो ये तो अस्तगफुरुल्लाह पढ़ना चाहिए। दुनिया के अंदर एक बात नहीं, तुझे मिसाल से इसे समझा तो अच्छी तरह से, तू एतराज में करना, मैं समझ रहा हूँ सर। हाँ मिसाल एक आदमी है, उसके पास 100 रुपए हैं, जो सुखाना इंसान है, उसे तो हम मालदार कहेंगे, क्या कहते हैं? मालदार। और उसके पास 5 रुपए हैं या 10 रुपए हैं, उसे कहेंगे हम गरीब। मान लिया? अब बात ये रही कि हम ये कहने लगे हैं कि इंसान अगर जिसके पास 10 रुपए हैं तो मालदार होगा, अगर हम 10 जिसके पास 10 रुपए उनसे भी मालदार कहने लगे
कम ही कहेंगे। ऐसे जो जिसको तुम 10 रुपए वाले को मालदार कह रहे हो, मालदार तो 5 वाला भी है, तो मालदार तो 6 वाला भी है, तो 7 वाला भी है। अब ये बताओ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब दिया गया था, तो इल्म गैब अताई किया गया था, और इल्म गैब की जब इजाफत की जाए तो उसको अताई नहीं होता, ज़ाती मुराद होता है। ये खुद तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है। चलो मेरी बात तो सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, उसने पागलों जैसा मेरे नबी का इल्म बताया, मेरे पागलों जैसा। मैं क्या बोल रहा हूँ, तू ऐसी बड़बड़ करता रहेगा, सुनेगा तो नहीं, मेरी मुझे पता है, सुनेगा तो फट जाएगी। नहीं ये तो बता दो मुझे, मोटरसाइकिल की आवाज आ रही है, जरा अलग से खड़ा हो जा। मोटरसाइकिल के लिए सफर में नहीं हुए, सफर में नहीं, बस में बैठा हुआ हूँ, बस में बैठा हुआ हूँ। तो फिर क्या है ये बुलबुल की आवाज आ रही है? मोटरसाइकिल बस होती है ना, बस में बैठा हुआ। परेशानी रहेगी तो कैसे मैं भेजूंगा? चलो मेरी बात सुनो, तो तुमने जो बताया टूटा फूटा इल्म गैब, वो चलो मैंने छोड़ो, तुम्हारे दिमाग में ठगी नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ तो नबी का इल्म गैब पागलों जैसा, बच्चों जैसा बताया, तो तेरे कान जबरी पके, मर गई क्या नानी, मर गई क्या? हाँ, जैसा पागलों को बच्चों को है वैसा। अरे भाई बात समझ नहीं रहा, तुम्हें किताबों को समझ कर पढ़नी चाहिए, बात समझ आ गई ना? ऐसा इल्म गैब तो पागलों को भी है, बच्चों को भी है, और जमीर हैवानात को भी है। ऐसा से मुराद क्या है? बच्चे ऐसे से मुराद है बाद इल्म गैब, बाद इल्म गैब। हाँ, तो बाद इल्म गैब जो पागलों को, वो मेरे नबी को है। पागल तो अरे मरिए, तू गया भाई, तू काफिर हो चुका है, तभी तो तुझे काफिर कहते हैं। क्यों पढ़ेंगे तेरे पीछे नमाज क्यों पढ़े तेरे पीछे, मुझे ये तो बता। बात सुनना है या नहीं? अब सुनने तेरा है क्या, तू अभी तक आगे नहीं आ रहे? ऐसा इल्म गैब तो जमी, बल्कि जमी हैवानात तो पागल को, बाहिम को भी है। इसका मतलब ये है कि अगर अब तुम ये कहोगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब, भाई तू वजाहत मत कर, जितनी बार वजाहत करेगा काफिर बोलूंगा, इतना याद रखिए। जबकि तू खुद कह रहा है कि ऐसा इल्म गैब पागलों को, नबी के बराबर ऐसा इल्म गैब, नबी को इल्म गैब है क्या? तो वो तो बोल रहे, अरे तो अशरफ अली को काफिर बोल है या नहीं? मुझे अशरफ अली को मुशरिक बोल, अशरफ अली को मुशरिक बोल। सवाल के जवाब में मुझे पता है। मैं बोल रहा हूँ है मेरा भाई है और कोई जवाब दे, मैं क्या बता रहा हूँ, और है या नहीं? तो सुनेगा नहीं। नाम है जवाब पर। और कोई गैब क्या जो इससे छुपा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो दरूद। बस हो गया, उसमें जवाब दे बस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब है या नहीं? है ना, है मेरे भाई, है। अल्लाह ने जितना दिया, हाँ नाम है जवाब। मानते हैं या नहीं? तू बात फिर भागने चाह रहा है, तू अहमद रजा मानता है या नहीं? हम मानता है, तब वही कह रहा है, और कोई गैब क्या इससे बड़ा छुपा मानता है? ये अहमद रजा का ही मैं शेर सुना रहा हूँ, और कोई गैब क्या इससे बड़ा छुपा, जब खुदा ही न छुपा तुम पे करे हो दरूद। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, जाति मानता ही अताई कितनी बार बोलूं, तू है नुतबे खताई, कितनी बार बोलूं मैं? उतल्लिम बादा जाले का चली मेरे सामने ज्यादा वो आ रहा है तो चुगली आ जा। अब तू बस रहने दे, तू कुछ नहीं कर पाएगा, मैं सब कुछ कर लूंगा। तेरे बस में कुछ नहीं है। अस्सलाम तो क्या तुम कुरान पाक को समझोगे? तुम जाहिल हो कुरान पाक को और अभी नहीं पा रहे तो क्या तुम कुरान पाक को समझोगे? जाहिल का मुसलमान नहीं होते, तो जाहिल का मुसलमान नहीं होते। अच्छा तू समझ रहा है, अच्छा तू समझा कुरान को, नहीं मानना तो तुम अच्छा तू कितना समझता है कुरान को? बात सुनेगा आगे, तू कितना समझता है कुरान को? अशरफ अली सारे वहाँ पर बना करके हराम का था, उसमें शर्म नहीं आती तुम्हें? अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में देवबंदी मालूम है। अब इसका जवाब है ना, लिखा था उसी वक्त में जवाब इसका मौजूद है। बोलो ये समझना ना, मेरे पास वजह देख, तुझे इतना अच्छा करके समझाऊंगा तो तू बहन बिठा लेगा। हाँ कौन अकबर है मेरे सामने आ तो सी जरा। अच्छा नबी को नहीं है, तुम उसको मोनी में बता रहा तो बिल्कुल करीब नहीं है। अच्छा कहाँ पे बता रहा मैं? इधर आओ बुलंदशहर की तरफ, समझ में आ गया? बुलंदशहर में, मुंबई में हूँ, बुलंदशहर भी मैं आऊंगा, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मुंबई में हूँ अभी।
समझ रहे क्या? मुंबई में हो तुम? मुंबई में हूँ अभी, और दिल्ली में मैं आऊंगा, दिल्ली में मैं रहने वाला हूँ, मेरी फैमिली सब मुंबई में रहती है। दिल्ली में कब आओगे तुम? रमजान में आओगे या रमजान के बाद में आओगे, ये बताना। मैं ईद मिलाद पे आऊंगा, 12वीं शरीफ पे, दिल जलाने को देवबंदियों के, सब ईद तो खुशियां मना रहे हैं। ईद मिलाद पे? हाँ, ईद मिलाद पे। अच्छा, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी नहीं मनाई, तो उसका मतलब वो इब्लीस हो गए। किसने नहीं मनाई? अरे मेरे आका की पैदाइश हर एक ने मनाई, वो तुम अपने तुम्हारे एक ने बनाई, वो साबित करो। अच्छा, उस्मान, हज़रत उमर, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला किसने बनाई, साबित करो। सुनो 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 अरे सुनो, अंग्रेजों का तरीका अंग्रेजों ने शुरू किया था। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, तुम अंग्रेजों को साथ दिया था तुमने, डीजे बजाते हो, शर्म नहीं होती तुम्हें? नानी मर गई, बनाते हैं, नानी मर गई, दूसरे मुल्क को लेकर के चला गया, नानी मर गई। तुम्हें ईद मिलाद बनाने में? मैंने तो कहा था मैं ईद मिलाद कराऊंगा। बोलने देगा नहीं तो सुनेगा क्या? बोलने देगा नहीं, खुद ही बोल देगा। जवाब नहीं सुनना, क्यों आमने सामने बात कर लेनी होती है? खुद थूक ले, कुछ सामने दिखलाऊंगा, कुछ चाट ले, मैं दिखलाऊंगा जो है तेरे लानतुल्लाह की किताबें मेरे पास नहीं भरी हुई है, जिसके अंदर लिखता है कि माज़अल्लाह आयत था भी, वो आयत तक बोलते थे, रामदेव भाइयों, एक रामदेव आया था देवबंद में, वो बोला इससे आके कि देवबंद के अंदर सब देव की पूजा करते हैं, देव की पूजा करते हैं। मेरे पास ऑडियो मौजूद है, तो इनकी अरे सुनी नहीं, आंखों से देखा मैंने, आंखों से देखा मैंने, मैं तुझे बताऊं, देवबंद देव का पुजारी। अरे राम बातों पर बिल्कुल अमल मत कर, सुना हुआ तुझे दिखाता हूँ ना, मैं तुझे दिखाता हूँ ये वीडियो, ठीक है, भेजता हूँ तुझे, व्हाट्सएप चालू है तेरा। रामदेव कह रहा है कि देवबंद में देव की भक्ति होती है, देव की पूजा होती है। बता, देव के माने भूत होते हैं, भूत के होते हैं, देव के माने तुम पूजा करोगे, तुम देवबंद हो, देवबंदी ही की पूजा करोगे, मुझे मालूम है। तुम्हें अल्लाह की मोहर लगी हुई तुम्हारे सीने पे, तुम मानने वालों में से नहीं। अस्सलाम वालेकुम मन इत्तबाअल हुदा, डूब के मर जा कहीं अगर तुझे जरा सी भी गैरत बाकी हो। नबी का इल्म गैब को नहीं मान रहा, नबी ने तो इनके सजरे खगाल के रख दिए हैं। आलम फरमाते हैं कि ऐ नूर बशर गैब को छोड़, इतना क्या कम है तेरे ऐबों को छुपाए हुए। लानतुल्लाह अलल वहाबीन अलल जवदीन अलल लानतुल्लाह अलल कज़्ज़ाबीन कज़्ज़ाब। हेलो, उनको काट दिया मैं, फोन को काट बार बार, तेरी आवाज आ रही थी, गूंगा हो गया तू, तेरे देवबंद के नाम से गूंगा हो गया, तेरी आवाज ही नहीं आ रही थी। रामदेव मेरी आवाज क्यों नहीं आता? बहाने से फोन काट रहा, साला इतना नहीं। जी जैसे ने कितने देखे हैं मैंने, जब मैं बोल रहा, अच्छा अबे गधे, तो मुझे पता तू भाया मैं समझेगा। अच्छा मुझसे कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, तुझसे पढ़ना था, पढ़ कर सुना दे मुझे, इल्म गैब के ऊपर एक आयत अच्छी करके सुना दे, बता। अच्छा तुम, मैं नहीं पढ़ा सकता, मैं मौलवी नहीं, मैं कारी नहीं, मैं मौलवी नहीं, तू तो मुल्ला है ना, हाफिज है ना, हाफिज है ना, अच्छा हाफिज है ना। तेरा अशरफ अली तो कुत्ता कहता है नबी को पीठ पीछे के इल्म नहीं, तो मानता है। अरे जो नबी आसमानों की खबर रखे, जो नबी सारे जमीनों को जाने, वो पीठ पीछे का इल्म नहीं। तेरी देख, अब मैं फोन काट रहा हूँ, अहमद रजा के बारे में, अहमद रजा ने क्या कितना फसाद फैलाया, वो तो देवबंदियों ने फैलाया, तो देवबंदियों ने फैलाया। मैं ये साबित करूंगा कि देवबंदियों ने फैलाया। जब से देवबंद आया, जब से ये वहाबी का फितना आया, इस्लाम दिन पर दिन जलील होता गया।
जब से ये वहाबी का झूठे फितना क्या आया मतलब? है, दिन पे दिन अल्लाह की लानत बरस रही है इन वहाबियों पे। जब से ये वहाबी आया झूठे है, हैं कि ये बता मुझे। जब से वहाबी आया है, जब से ही दीन बदनाम हो चुका है। जब से ही देख 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 जब देख से मेरी बात अब दूसरे को आतंकवादी, बोलना। सुनो, आतंकवादी अरे जा, तुम, जा। तो तुम वहाबी नहीं हो, मैंने तुम वहाबी नहीं हो। बोल बाल करके यूट्यूब पे भेज भी दी और उसके बाद अब तू अरे मुझसे कह रहा है कि हाँ, तुम कहने से क्या होगा। अच्छा, अब तो तुम मैंने पहले बोल दिया। हाँ, तो मैंने सुन लिया और कई बच्चों को मेरे पास फोन भी आ गया इसके ऊपर हाँ, कि तुम मेरे आईडी सुनिए, आईडी सुनो, सुनते रहो बस, सुनते रहोगे जिंदगी भर। हाँ, वही तो तुम्हारे दिलों पे अल्लाह ने मोहर लगा दी है कि तुम सुधरने वाले ही नहीं, तुम सुधरने वाले ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने दिलों पर क्या लगा दी? तुम्हारे मोहर लगा दी। हाँ, मोहर लगा दी। तुम्हारे समझ में आने वाला नहीं, तुम्हारे समझ में आने वाला नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा कुलूबिहिम मरादा फज़ादहुम अल्लाहु मरादा फज़ादहुम अल्लाहु मरादा। नानी मर गई तुम। अच्छा, तू आलिमों से बात क्या करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फज़ादहुम अल्लाहु मरादा कि इनके दिलों में नबी की बुग़्ज़ की बीमारी है। तुम नबी से बुग़्ज़ रखते हो। आज तुम शान नज़ुल कुरान तो है, कुरान हमेशा के लिए है ना। बस समझिए, बस मर गए तुम, मर गए, तुम्हारी नानी मर गई। तुम्हारे दिलों में नबी की बुग़्ज़ की बीमारी है। नबी को लिखा गया नबी समाज से ज्यादा जलील है। मैं कहता हूँ नबी को लिखा गया कि नबी समाज से ज्यादा जलील है। मर गया कौन से बात से? तू हाफिज कहाँ से बन गया? तू मुझे तो बता, कितने बना? मेरे आका फरमाते हैं बड़ा कुरान पढ़ेंगे। मेरे आका फरमाते बोल लिए बोलूं? तू नानी मर गई क्या? बोलो को ना, वो पूछ रहा, बताओ। अरबी बोल लो, अरबी। मेरे आका ने फरमाया कि उनके वो कुरान बहुत पढ़ेंगे, कुरान बहुत पढ़ेंगे, लेकिन उन घाटे से नीचे नहीं उतरेगा। वही तुम्हारा हिसाब है, तुम्हारे घाटे से नीचे कुरान उतरेगा ही नहीं। मैं तुझे हाँ, मर गई नहीं नानी, मुझे मालूम है। तेरे पास कोई जवाब नहीं, तुम मुझसे, मैंने तुझसे पहले कह दिया। मैं अना सुन्नी अना हनफी, अना सुन्नी अना हनफी अना बरेलवी अल्हम्दुलिल्लाह लानतुल्लाह अलल देवबंदी लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। बरेलवी। हाँ, जब मर गया तुम, मर गया। अब तुम मेरी डबिंग कर रहा है, मर गया तुम। अना सुन्नी हनफी अना सुन्नी हनफी अना बरेलवी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तू बरेलवी है? हाँ, बरेलवी है। बरेली के माने, बरेली का माना नजात, नजात मेरे लिए। बरेली का माना नजात मेरे लिए। और देवबंदी का माना देवबंदी, देव का पुजारी, देव का बंदा। तुझसे मैं बात नहीं कर रहा। चल मैं बता रहा हूँ, चल एक कुरान की आयत सुन। मैं बता रहा हूँ, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वात फ़ौक़ सौतिन नबी। ऐ ईमान वालों, मेरे नबी की आवाज से अपनी आवाज को ऊंची ना करो। ये गधा तो नबी के बराबर बता रहा है, पागलों को, गधों को। अब तुम मर लो, तुमसे बात, अब मैं तुमसे बात अल्लाह एक और सुन लो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश, सुनो, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू वस्तईनु बिस्सब्रि बिस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन यक़्तलू फी सबिलिल्लाहि अमवात वल हय्युन वलाकिन ला तशऊरून। मर गई नानी, मर गई। चलो फोन काटो, तुमसे बात नहीं करूंगा। मर गई तुम सुनना चाहना तेरा पुराना मैं तुझसे बोल रहा हूँ। मैं तुझसे बोला मैं हाफिज हूँ। मैं तुझसे बोला ठीक है, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ तेरा भी बहुत गलत है।
अच्छा, सुनना अच्छा, तूने पढ़ा यक्तलू पढ़ा तू पढ़ता जा पूरे पूरे तो मैंने क्या पढ़ा है बे गधे? मैंने लिमई यक्तुलू पढ़ा है, लिमई यक्तुलू और है क्या? यक्तलू है ही नहीं, यक्तलू है, यक्तलू यहाँ पे पेश है, देख ले यहाँ पर लिमई पेश है, यक्तुलू तो है, लिमई यहाँ पर यक्तुलू, पेश है, यक्तलू है, यक्तलू नहीं है, मैं यक्तुलू यहाँ पढ़ पर रहा पेश है, हूँ। मैं बोला चल तू पढ़ ले, चल तू पढ़, हैं? तू पढ़ ले। अरे नहीं यार, एक मिनट सुन मेरी बात, इस वक्त चल मैं अंदर। तेरी रिकॉर्डिंग वोटिंग कुछ नहीं कर रहा। आज तू बात नहीं कर पाएगा। मैं तुझे पहले इसी तरह सुना दे, बस मैं बात नहीं कर रहा, तो चल मैं अच्छा, बढ़ा अच्छा। होता तो मैं बात करता, अच्छा, मैं तुझे और सुना दे इसी तरह। अच्छा, मैं तुझे आवाज तो बताऊँ। तेरी सही लग रही है, सुन पहले तो बात तो सुन मेरी, हाँ, तेरी आवाज तो सही लग रही है, मतलब तू जरा वो है, लेकिन फिर भी तुझसे एक रुकू सुनना चाहते हैं हम, फिर सुना कोई बात नहीं। तो रुकू पढ़ने के लिए मेरे पास अभी देख, मैं भाई मेरे हाफिज नहीं हूँ, फुरकान देवबंदी में हाफिज नहीं हूँ, फुरकान देवबंदी। लेकिन आवाज सुना पहले, मुझे आवाज जो जरा अच्छी लग रही है, इसलिए थोड़ा पढ़ दो एक आध रुकू तो अच्छा लगेगा मुझे। कुरान मेरे को पढ़ करके कोई से भी सुना दो, देख करके सुना दो, हाफिज नहीं है तो कुरान मेरे सामने भी नहीं है मेरे भाई, मैं सफर में चल रहा हूँ, कुरान मेरे सामने नहीं। लेकिन एक मिनट सुनो, कुरान की आवाज अच्छी और वो हाफिज ना हो तो वो सुनावे तो मजा आता। तो तुम्हारी वैसे तरफ तो वो ठीक नहीं है, लेकिन आवाज अच्छी लग रही है, इसलिए मैं सुन रहा हूँ, एक रुकू सुनाओ, कोई से भी सुना दो अपनी मर्जी से। कुरान करीम मेरे सामने नहीं है, और ना मैं हाफिज हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्यों मुझसे झूठ बुलवाने पे कोशिश कर रहा हूँ? मेरे सूर्य पानी पढ़ दो, कम से कम इतना तो पढ़ दोगे, अम्मा के बारे में पढ़ दो एक आध रुको। हाँ, सूर्य फातिहा पढ़ सकता हूँ, अम्मा में से पढ़ दो बस, सूर्य फातिहा पढ़ रहा हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। मौसम में एक आध सूरत और पढ़ दो। अब भाई मेरे मुझे ज्यादा सूरत याद नहीं है। अरे अम्मा ने से पढ़ दो, बस आवाज अच्छी लग रही है, सारे सुनने हैं हम तो ज्यादा सुन रहे हो। मुझे अलिफ लाम मीम का वहां तक पढ़ सकता हूँ, इन्नल लज़ीना कफरू सिफाओ, ठीक है? चलो तुम वहाँ तक पढ़ दो। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, الذين آمنوا بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب نزيم
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. بھائی یہیں تک یاد ہے مجھے، باقی میں اتنا بتا رہا ہوں، میں کوئی حافظ نہیں، اور میں صرف قرآن میں نے پڑھا تھا بچپن میں 12 سال کی عمر میں، 12-13 سال کی عمر میں جب سے قرآن ہی پڑھا ہوا ہوں. اور اللہ کے میں نے کبھی انشاءاللہ مجھے یہ شرف حاصل نہیں ہوا ہے کہ میں نے کبھی حدیث شریف کا مطالعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کیا ہو. مجھے صرف اہل سنت میں نے جو چاشنی محبت رسول کی پائی وہ صرف احمد رضا کے پاس. باقی تم کچھ بھی کہو وہ تمہاری سمجھ کے ہی پڑے ہے. میں اسی لیے بھائی میں فون کاٹ رہا ہوں، میرے پاس میرا اسٹاپ آ چکا ہے، اب سفر میں چلتے تھے بات نہیں کر سکتا. ہاں اعتراض نہیں، ایک چیز جو میرے پاس بھیجتے رہی ہے اس کا سوال تمہیں ملتا رہے گا، اور میں بہتر مناسب یہ سمجھوں گا کہ ایک سوال کا جواب آپ نے سامنے ہو تو اور بہتر. آپ جتنے بھی اعتراض ہیں سنجیدگی سے بات کیجیے، ٹھیک ہے؟ میں ہاں جی بالکل، میں نے بتایا میں بعد میں شریف پہ آؤں گا. تم نے اس پہ اعتراض اٹھا دیا کہ عید میلاد. اب بتاؤ یہی جو بھی ایک موضوع ہے عید میلاد، یہ تم نے چھیڑا نا اسے. میں نے بولا میں 12ویں شریف پہ آؤں گا، عید میلاد پہ آؤں گا، میں نے یہ بولا تھا. تو تم نے اسی کو ایشو بنا لیا، اسی کو ٹاپک بنا لیا. تو تم نے چلو ٹھیک ہے. میرے پاس بس میں چل رہا تھا، اب تک میں نے بات کر لی کیونکہ میں اب کمپنی میں گھسنے والا ہوں. میں پھر وقت نہیں رہتا میرے پاس، پھر سنڈے کو ہی ٹائم ملے گا مجھے. ٹھیک ہے السلام علیکم مرتبال ہو جائے. استقبال کریں زوردار. ابھی ہریدوار سے تشریف لائے ہیں، میں بھی استقبال کرتا ہوں. ہندوستان کے کروڑوں ہندوستانیوں کی دھڑکن اور بڑے یوگ گرو جناب بابا رام دیو جی، میں درخواست کروں گا بابا رام دیو جی سے کہ آئیں اور آپ لوگ ذرا زوردار استقبال کیجئے، تشریف لائیں. میں جن کی بہت دل سے عزت کرتا ہوں اور بہت عرصے سے میری تمنا تھی کہ دیووں کی جہاں بندگی کی جاتی ہے، خدا کی جہاں بندگی کی جاتی ہے، ایسے اس بھگوان کی دھرتی پر دیوبند پر مجھے آمنترت کیا ہے. میں پرتھم تو بھائی محمود مدنی صاحب کا، مولانا صاحب کا بہت ہردے سے ان کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب بھگوان کے ایشور کے پتروں کے، اللہ کے خدا کے بندوں کا یہاں درشن کرنے کا مجھے موقع دیا. میں مولانا قاری عثمان صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں، ان کو ہردے سے دھنیواد دیتا ہوں. اور یہاں میرے منچ پر دائیں اور بائیں اور پیچھے کی اور جو مہان شخصیت ہیں، آتمائیں ہیں، ان سب کے ساتھ اس دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں آپ کے دھیریے کو، آپ کی ہمت کو بھی میں بہت بہت سلام کرتا ہوں. سبھی میرے مسلم بھائیوں کو السلام علیکم. اور میرا پرنام ہے، آپ کو نمستے ہے. اور اس لیے کہ میں آپ کو اس ٹوپی سے ڈھکا ہوا، دو وسطروں سے ڈھکا ہوا ایک مسلمان نہیں، میں آپ کے بھیتر اس خدا کے نور کو دیکھتا ہوں، اس بھارت ماں کے تقدیر اور اس کے بھوشیہ کو دیکھتا ہوں. آپ ایک سامانیہ انسان نہیں، بھگوان نے آپ کو ایک وشیش شکتی دے کر کے، اس اللہ تعالیٰ نے، اس خدا نے، بھاشاؤں میں چاہے اس کو ہم نے بھگوان کہا، ایشور کہا، پرماتما کہا، اللہ کہا، خدا کہا، ہم نے عبادت بھی اپنی اپنی بھاشاؤں میں چاہے الگ الگ کی ہو، سنسکرت میں، اردو میں، عربی میں، فارسی میں، ہم نے کہیں منتر بول کر کے اس کی عبادت کی ہو، تو کہیں ہم نے اس کو اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ خدا، وہ پرماتما، وہ جو ساری دنیا کا مالک ہے، اس کو ہم نے الگ الگ بھاشاؤں میں چاہے الگ الگ نام دیے ہوں،
खुदा के हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेजी में नाम अलग अलग हो सकते हैं,